Hmm. Good afternoon, students. I am Sanjay Maurya from EC department, and I am taking this subject, microprocessor, subject code KCS 403. सर लेटिन कर लीजिए. Okay. So initially, I will discuss the syllabus of microprocessor. Then we'll start from the introduction of microprocessor, unit 1. So syllabus has been shared on your screen, and there are total 5 units. And in unit 1, we will discuss about the general microprocessor, and we will study the general architecture of a microprocessor, then its components, and the addressing of the memory, how how and what addressing modes are used in a microprocessor, then data transfer schemes, how the data has been transferred in microprocessor, and then timer and timing diagram, interfacing devices, because in each and every microprocessor there are several interfacing devices without which a microprocessor cannot work. Like we are talking about microprocessor, then it requires input device and output device, memory unit, just as general desktop computer or laptop, that it requires a processor and some other peripheral devices for input output. So as we all know about laptops and desktop computers, so microprocessor is same as a general computer. It requires some input devices, some output devices, and memory units. So initially we'll study about the evolution of microprocessor. The very first microprocessor was developed in 1971, 4004. So there is a chart of evolution of microprocessor. I will show you later. And then microprocessor architecture will be discussed. And in second and third unit, we'll discuss about the 8085 and 8086 microprocessor. So we'll discuss the architectures, internal architectures of 8085 and 8086, because these are the two microprocessors which are most widely studied. So that is why we'll study these two microprocessors named 8085 and 8086. And then we'll go through the detailed study of 8085 and 8086. There are some slight differences in
8085 and 8086 microprocessors, which will be discussed in these 2 units. After that, the unit 4, it includes assembly language programming. आप लोग CS के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अदर जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी सब्जेक्ट्स होंगे जो प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे, जिसमें से हो सकता है कुछ आप लोगों ने पढ़े और कुछ आगे पढ़ेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल सेम उन्हीं सब्जेक्ट्स की तरह है, इसमें भी प्रोग्रामिंग है एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम वेरियस ऑपरेशन इसमें करते हैं। तो 4th यूनिट प्योरली प्रोग्रामिंग बेस्ड यूनिट है। एंड देन फिर 5th यूनिट में हम कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस इससे कनेक्ट की जाती हैं, जिनके थ्रू हम सेवरल अदर वर्क भी परफॉर्म करते हैं। तो ये तो ब्रीफ हो गया जो सिलेबस है हम लोगों का माइक्रो प्रोसेसर का। एंड टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं, तो आप लोगों को बुक्स कौन कौन सी यहाँ पर रेफर करनी है। तो इन केस ऑफ 8085 फर्स्ट यूनिट और जो सेकंड यूनिट है, उसके लिए हमें ये फर्स्ट बुक रेफर करनी है। रमेश सोमकर इसके राइटर है एंड टाइटल इसका माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विद 8085। ये कंप्लीट टाइटल है इसका, पब्लिशिंग हाउस है। एडिशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो 5th एडिशन पढ़ेंगे। एंड इस बुक की PDF मेरे पास है, तो वो हम क्लासरूम में आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो 8085 से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो हम लोगों को इस बुक में मिल जाएगा। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न विद 8085, तो वो हमें इस बुक में मिल जाएगी। और जब हम 8086 की बात करेंगे, तो इन केस ऑफ 8086 हम ये दोनों बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, AK रे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स की TMH की, और सेकंड बुक है हॉल DV हॉल राइटर है, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग टाइटल नाम से बुक आती है, ये भी TMH पब्लिकेशन की। ये तीनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, लैंग्वेज भी इनकी अच्छी है, आप लोग इन्हीं बुक्स को प्रेफर करिएगा। लाइब्रेरी में भी अवेलेबिलिटी है इन बुक्स की, आप लोग लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हैं, और मैं PDF शेयर कर दूंगा, तो आप लोग PDF से भी स्टडी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और जो हम कहना चाहेंगे आप लोगों को, कि आप लोग जूम में या गूगल क्लासरूम में जैसे भी ज्वाइन करेंगे, तो ये जो फॉर्मेट आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में बताया गया था, सेम फॉर्मेट से ही ज्वाइन करिएगा। इनिशियली आप रोल नंबर के फर्स्ट 3 डिजिट अंडरस्कोर एंड देन फिर आपका जो भी नेम है वो मेंशन करें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम में इस फॉर्मेट से नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग उसको अपना नेम रिनेम कर लीजिए एंड उसी फॉर्मेट से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज जब भी उसमें मार्क्स की शॉर्टिंग होगी गूगल क्लासरूम में, तो शॉर्टिंग में आपका रोल नंबर मिस हो जाएगा। तो इस केस में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बार मार्क्स फीड हो गया तो फिर आप लोग भी जानते हैं वो दोबारा से उनको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए मैंने स्क्रीन आप लोगों से शेयर किया हुआ है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये अभिषेक वर्मा है, इन्होंने डायरेक्ट इसी तरह से बाई नेम ज्वाइन कर रखा है, तो ये करेक्ट कर लें। अंशिका, आप भी अपना नेम जो है वो रिनेम कर लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए अपना नेम कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट से ज्वाइन किया है या नहीं। मोहम्मद एहसान, आप भी अंडरस्कोर इसमें लगा लीजिए, क्योंकि शॉर्टिंग में प्रॉब्लम होगी। राहुल कुमार अगर इसी ग्रुप में है तो देख लें। तो आप लोग सभी लोग एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए कि प्रॉपर फॉर्मेट से ज्वाइन है या नहीं। सब्जेक्ट की बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है एंड टू द पॉइंट। 4th यूनिट में आप लोगों को
इसकी इंस्ट्रक्शन, और जैसे आप लोगों ने सी वगैरह अगर पढ़ी हो, सी प्लस, तो उसमें भी जिस तरह से आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन के कैटेगराइजेशन स्टडी किए, तो वैसे यहाँ पर भी हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे, उनके जो भी निमोनिक्स यूज होंगे यहाँ पर, तो उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है और प्रोग्राम में उनको यूज करना है। जैसे डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हैं, लॉजिकल के लिए डिफरेंट है, फिर ब्रांच ऑपरेशन, लूपिंग, काउंटिंग, इंडेक्सिंग। तो ये जो भी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, उन सबका कैटेगराइजेशन किया गया है और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को हमें प्रोग्राम्स में यूज करना है। तो ये यूनिट थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये यूनिट थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट ज़्यादा है। बट क्योंकि आप लोग सीएस के हैं, तो आप लोगों को तो प्रोग्रामिंग ही स्टडी करनी है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में। रेस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, बट बहुत ही स्मॉल न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे 2-2 4-4 लाइन के फॉर्मूला बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि एग्जाम में भी बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। एंड ये जो बुक की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली हम यही फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों हमें इसी बुक में मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी यूनिट में, इसी बुक में मिलेगा। बुक हमने यहाँ पर ओपन कर रखी है। ये सेम बुक आप लोगों को लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। फिफ्थ एडिशन रमेश एस गांवकर की पीडीएफ हम शेयर करेंगे क्लास में। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को शायद इंस्ट्रक्शंस मिल गए होंगे कि अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स पे नहीं होगी, अटेंडेंस हम कॉल करके लेंगे, जैसा बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों के साथ हो रहा होगा। तो इसके लिए प्रिपेयर सर रहिएगा। चैट में ही लगता है। हाँ सर बाकी सब्जेक्ट में तो चैट में लगाई अटेंडेंस। नहीं, चैट वाला हो सकता है पता ना हो, बट चैट बॉक्स वाली अटेंडेंस अब नहीं एक्सेप्टेबल है, अटेंडेंस कॉल करके ही होगी। तो चैट बॉक्स में आप ओके लोग मत सर। दीजिएगा अटेंडेंस, हम कॉल करेंगे बीच में, जैसे ही टाइम मिलता है अटेंडेंस ले लेंगे। एंड क्लास 1 घंटे की ही है, तो आप लोग जैसे ही क्लास एंड होगी 40 मिनट्स के बाद, तो सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। और ये थ्रू आउट द, जब तक सब्जेक्ट चलेगा तब तक के लिए है। जैसे ही एंड हो अपने आप रिज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो इसके डेफिनेशन से, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि क्या माइक्रो प्रोसेसर है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो जैसे कि हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो ये माइक्रो प्रोसेसर वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक ये माइक्रो वर्ड है और जो सेकंड वर्ड है दैट इज प्रोसेसर। दोनों ही वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं। माइक्रो से मतलब ये है कि ये माइक्रो फंक्शंस या माइक्रो डायमेंशंस में ये डिवाइस है, एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग सम works as defined by the user in the form of programs. So that is why it is named a microprocessor. आप लोगों ने लैपटॉप में, मोबाइल्स में या डेस्कटॉप्स में भी प्रोसेसर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उनके फीचर्स के बारे में कहीं पढ़ा होगा या परचेज करते समय उसकी स्पेसिफिकेशंस देखी होंगी। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर भी है। तो अगर हम जनरलाइज वे में बात करें, टेक्निकल वर्ड्स में बात करें कि व्हाट माइक्रो प्रोसेसर इज, तो
इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जो हम लोग सीपीयू के लिए बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सेम चीज माइक्रो प्रोसेसर है। तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ट ऑन ए सिंगल आईसी इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिंगल आईसी के फॉर्मेट में आता है। मतलब आप लोगों ने आईसीज देखी होगी पीसीबीज में, जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं उनमें इस तरह की आईसीज होती हैं, और इनमें कुछ इनके कनेक्शन के लिए ये लेग्स इन आईसीज के अंदर से बाहर की ओर निकली हुई होती है। इस तरह से ये आईसी का एक जनरल डिजाइन है। माइक्रो प्रोसेसर भी इसी तरह की सेम इसी टाइप की आईसी है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। एंड एक किसी भी आईसी में एक कर्व बना हुआ होता है, एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द आईसी। मीन्स कि हर एक आईसी की नंबर ऑफ पिन्स प्री डिफाइंड होती है कि इसमें कितनी पिन्स होंगी। मीन्स ये जो लेग्स हैं ये कितनी लेग्स होंगी, हर एक आईसी की लेग्स प्री डिफाइंड होती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो कुछ माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट के होते हैं, कुछ 40 पिंस के होते हैं, कुछ 16 पिंस के होते हैं, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है इसके अकॉर्डिंग इसकी नंबर ऑफ पिंस होती है। या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोई आईसी है तो वो आईसी की नंबर ऑफ पिंस प्री डिफाइंड है कि उसमें कितनी पिंस होंगी। तो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द आईसी, एंड इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड से मानी मीन्स फ्रॉम दिस पिन रिप्रेजेंट्स द पिन नंबर 1, एंड देन फिर काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 के बाद 2, 3 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग आगे काउंट होगी। अब अगर ये आईसी 16 पिन की है तो 8 पिन इस तरफ होंगी और 8 पिन इस तरफ होंगी, राइट में 8 लेफ्ट में 8। एंड जो काउंटिंग हम कर रहे हैं फर्स्ट पिन से 8 पिन तक इधर कर लिया, एंड देन यहाँ पर 9 से स्टार्ट होगा, 9, 10 एंड सो ऑन, और जो लास्ट पिन होगी वो पिन नंबर 16 होगी। किसी भी आईसी में नंबर ऑफ पिन्स आइडेंटिफाई करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और माइक्रो प्रोसेसर में भी यही फॉर्मेट फॉलो होता है। इन सम आईसीज दिस कर्व इज नॉट गिवन। ये कर्व आप लोगों को दिख रहा है कुछ आईसीज में नहीं होता है। उन आईसीज में कॉर्नर पे एक डॉट सा गिवन होता है, और इस डॉट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस तरफ से पिन नंबर 1 को काउंट करेंगे, आईसी को हम किस तरह से अपने सर्किट में लगाएंगे। बिकॉज रेक्टेंगुलर शेप में है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आईसी का टॉप क्या है। अदरवाइज सर्किट हमने किसी और पिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया और आईसी अगर उल्टी लगा दी तो इट विल नॉट वर्क, और अगर किसी गलत पिन पर पावर सप्लाई चली गई तो इट कैन बर्न ऑल्सो। तो माइक्रो प्रोसेसर भी एक इसी तरह की आईसी है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ट ऑन सिंगल आईसी इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। बिकॉज जो भी प्रोसेसर है वो किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर भी कुछ कंप्यूटिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के ऑपरेशंस, कंप्यूटिंग ऑपरेशंस करने के लिए, या कुछ अदर ऑपरेशंस भी हैं आगे डिस्कस करेंगे उनको, उनके लिए है। या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को भी कह सकते हैं, मीन्स जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर कंपैरिजन वगैरह करना हुआ या कुछ अदर भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो करना है। तो ये ऑपरेशन करने के लिए भी हम जो डिवाइस का यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस का यूज करते हैं। इसी तरह से एक वर्ड और है जिसे कि हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो अ डिजिटल कंप्यूटर इन विच वन माइक्रो प्रोसेसर हैज बीन प्रोवाइडेड टू एक्ट एज द सीपीयू। अगर एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है जिसको कि हम एज अ सीपीयू यूज कर रहे हैं तो इट इज नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। और यहीं पर अगर हम अ कंप्यूटर हुज सीपीयू कंटेन्स मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर तो हम उसे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो एक से ज्यादा भी प्रोसेसर, जैसे कि आजकल अगर आप लोग मोबाइल्स की स्पेसिफिकेशन देख रहे हो
परचेज करते टाइम, तो कहीं कहीं पर जो प्रोसेसर लगे होते हैं 2-2 प्रोसेसर दिए हुए होते हैं मोबाइल्स में, अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकेशन देखे। तो इस तरह के जो सीपीयूज होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा मल्टीप्रोसेसर लगे तो उनको हम लोग मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, और इनका यूज इसीलिए किया जाता है कि टू एनहेंस द स्पीड ऑफ द डिवाइस। और अगर हम एक कंप्लीट डेफिनेशन की बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को हम कंप्लीटली किस तरह से डिफाइन करेंगे, जिसमें कि हम इसका कि क्या किस तरह से वर्क करता है वही बताएंगे, तो ये डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर की है। A microprocessor is a multi-purpose, programmable, clock-driven, रजिस्टर-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब मल्टीपर्पज तो हो गई कि मल्टीपल हम पर्पज इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल है क्योंकि इसमें हम जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो यूजर डिफाइंड प्रोग्राम्स इसमें डाले जाते हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसर वर्क करता है, तो इट इज प्रोग्रामेबल ऑल्सो। माइक्रोप्रोसेसर इज क्लॉक ड्रिवन, मीन्स यहाँ पर हम क्लॉक का यूटिलाइजेशन कहते हैं, एंड दिस क्लॉक डिफाइंस की हाउ फास्ट द माइक्रोप्रोसेसर विल वर्क। तो इट इज क्लॉक ड्रिवन। रजिस्टर बेस्ड मीन्स यहाँ पर कुछ रजिस्टर को एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है टू परफॉर्म ऑपरेशन। हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अगर दो नंबर्स का एडिशन करना है तो वी नीड एटलीस्ट 3 रजिस्टर, 2 रजिस्टर हमें यूज करने होंगे और द 2 इनपुट नंबर्स जिनको हमें ऐड करना है, एंड 3rd रजिस्टर हमें यूज करना होगा जिसमें कि हम जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमें रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है फॉर स्टोरेज पर्पज, तो वो भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो माइक्रोप्रोसेसर में होनी चाहिए। माइक्रोप्रोसेसर कंप्राइजेज ऑफ दीज थिंग्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। अब इसके बाद इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो दैट मीन्स माइक्रोप्रोसेसर रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस देखिए, जो यूजर डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं वो तो हमारे निमोनिक्स में होते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जो हमारे पास में जो भी प्रोसेसर है वो उसको बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। तो वो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है। कहाँ से रीड करता है? स्टोरेज डिवाइस से, यानी मेमोरी से, जहाँ पर भी प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता है। आफ्टर दैट एज पर द प्रोग्राम इट एक्सेप्ट द बाइनरी डेटा एज इनपुट। ये किसी भी इनपुट डिवाइस से हो सकता है, एंड देन इट प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन। लाइक जैसे एडिशन के लिए दिया गया है तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही एडिशन परफॉर्म करेगा, एंड देन इट प्रोवाइड्स रिजल्ट एज द आउटपुट। जो भी आउटपुट डिवाइस होगी उसमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो बहुत बेसिक सा डायग्राम यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये शॉर्ट में माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से लिखते हैं, तो ये म्यू बना हुआ है। म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो एंड पी स्टैंड फॉर प्रोसेसर। तो यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, एक इनपुट डिवाइस है और एक मेमोरी। इट इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर है। यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ से हमने प्रोग्राम को रीड किया, एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन जो भी रिजल्ट आएगा माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन करेगा, एंड जो रिजल्ट आएगा उसको इधर आउटपुट डिवाइस में दे देगा। अब यहाँ पर ये जो एरोज बने हुए, ये एरोज की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शन और ये बाई डायरेक्शन। इनपुट डिवाइस से डेटा हमेशा माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड ही होगा, ये डायरेक्शन हमेशा इनसाइड होगी। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस की तरफ हमेशा डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, बिकॉज यहाँ से डेटा कभी भी इनपुट की तरह नहीं जा सकता है। लाइक जैसे हम प्रिंटर का एग्जांपल लें कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है सीपीयू से, तो प्रिंटर से इनपुट नहीं आ सकता है, प्रिंटर की तरफ आउटपुट जा सकता है। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, तो डिस्प्ले पे हम आउटपुट दे सकते हैं लेकिन डिस्प्ले से हम इनपुट नहीं ले सकते।
ऐसे ही मेमोरी है, मेमोरी से हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और मेमोरी में डेटा को राइट भी कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स हमें क्या करना है, जो भी हम डेटा ले रहे हैं, कभी कभी जिस भी डेटा पे हमें ऑपरेशन करना है दैट डेटा इज सेव्ड इन मेमोरी, तो हमें मेमोरी से डेटा को फैच भी करना पड़ सकता है। एंड इन द सेम वे कभी कभी आउटपुट को हमें आउटपुट डिवाइस में ना ले जा करके हमें मेमोरी में सेव करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें डेटा को मेमोरी में स्टोर भी करना है। दैट इज वाई ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज बाई डायरेक्शनल। डेटा यहाँ से इस तरफ भी मूव करेगा और इस तरफ भी मूव करेगा। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू, जिसको कि हम लोग एमपीयू भी बोलते हैं। कहीं कहीं हो सकता है आपको कभी एग्जाम में एमपीयू वर्ड भी मिल जाए। तो यहाँ पर एक फिगर है, वो फिगर हम अभी नेक्स्ट पेज में शो करेंगे आप लोगों को, फिगर 1.2। So traditionally the computer is represented in block diagram as shown in figure। तो वो फिगर अभी हम शो करेंगे। फिगर बिल्कुल सेम है जैसा जो प्रीवियस फिगर हम लोगों ने देखा है, सेम उसी तरह का है, बस देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स। तो जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये शो कर रहा है कि जो भी हमारा कंप्यूटर है इट हैज 4 कंपोनेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस फिगर में भी देखा था कि हमारे पास मेमोरी भी है, इनपुट है, आउटपुट है और सीपीयू भी होता है। ये मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी कंप्यूटर में होते हैं। देख लेते हैं क्या है फिगर। ये ठीक, ये हमारा सीपीयू है जो डॉटेड लाइन से जो है आपको शो हो रहा है। दिस इज सीपीयू। इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू दिस सीपीयू, आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड एंड मेमोरी इज कनेक्टेड टू दिस सीपीयू। और जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो इनसाइड दिस सीपीयू देयर इज अ ALU, arithmetic logic unit, and a control unit. Control unit is used to control all these operations performing through the CPU. Means कब हमें इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा लेना है, कब हमें आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट डेटा देना है, या मेमोरी से कब हमें रीड करना है डेटा को और मेमोरी में कब हमें राइट करना है, ये सारे ऑपरेशंस इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल होते हैं कि when we have to take input, when we have to give output and when we have to read or write in memory। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका काम क्या है, जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होने हैं सीपीयू के अंदर वो परफॉर्म करना। And the same thing is explained here कि the CPU consists of arithmetic logical यानी ALU, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये दो चीजें होती हैं सीपीयू के अंदर। CPU contains various registers to store data, the ALU to perform arithmetic and logical operations, instruction decoders, counters and control lines। अब सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू रीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इसने इंस्ट्रक्शंस रीड किया और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म किया। एंड it also communicates with input output devices either to accept or send data, and these devices are also called as peripherals। मतलब माइक्रोप्रोसेसर से जो भी अदर डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उन सभी को हम एक जनरलाइज वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें कि हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। एंड जैसा कि अभी हमने बताया था सीपीयू के बारे में कि जो टाइमिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं या मेमोरी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी कि
when we have to take input and when we have to give output। ये सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है, ये कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रो प्रोसेसर का कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इवोल्यूशन की, क्योंकि द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट इज माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन एंड टाइप्स। तो हम सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब आया एंड आफ्टर दैट कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर। तो ये हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इस टेबल की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास में प्रोसेसर है कि कौन कौन से प्रोसेसर हैं, हर एक प्रोसेसर का कुछ नंबर है एंड ये सभी प्रोसेसर जो है वो इंटेल कंपनी के प्रोसेसर हैं। के बाद फिर इनका ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है कि कब ये इंट्रोड्यूस हुए माइक्रो प्रोसेसर, फिर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स किसमें कितने थे, क्लॉक स्पीड इनिशियली कितनी थी, फिर एड्रेसिंग जो थी एड्रेस बस थी वो कितने बिट की थी, डेटा बस कितने बिट की थी एंड जो मेमोरी एड्रेसेबल है वो कितने बिट या बाइट की थी। तो ये हम लोगों को यहाँ इवोल्यूशन में देखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर। तो जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो 4004, ये नंबर जो है ये पहले माइक्रो प्रोसेसर का नंबर है और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से मतलब है कि कोई भी आईसी डिजाइन होती है तो दिस ईच एंड एवरी आईसी कंसिस्ट ऑफ सम ट्रांजिस्टर। कोई भी आईसी ट्रांजिस्टर से ही बनी हुई होती है एंड डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि इनिशियली इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट इज़ वाई एक सिंगल आईसी में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बहुत कम डिज़ाइन किए जाते थे। आफ्टर दैट जैसे जैसे इंटीग्रेशन होता गया, जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे ट्रांजिस्टर का साइज बहुत कम होता गया और एक बहुत ही स्मॉल एरिया में हम लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई आज की डेट में हमें इतनी हाई स्पीड किसी भी डिवाइस में मिल रही है। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 हो गया 1971 में, और यहाँ पर जैसे डेटा और एड्रेस बस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 बिट के डेटा पर ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते थे। मतलब अगर हमें 2 बिट को ऐड करना है और हम बाइनरी में एडिशन कर रहे हैं तो सिर्फ 4 बिट, यानी जैसे 1011 हो गया और मान लीजिए 1100, तो ये इस तरह से हम सिर्फ 4 और 4 बिट्स के डेटा को ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में डेटा बस सिर्फ 4 बिट की है, ये एक बार में सिर्फ 4 बिट के डेटा को ही फेच कर सकता है। ऐसे ही एड्रेसिंग सिस्टम 10 बिट का है तो हम सिर्फ 10 बिट के ही मेमोरी साइज को यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो एड्रेसेबल मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ 640 बाइट, जो कि आज की डेट में हम लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि 640 बाइट कितना होता है। आजकल हम लोग जो भी बात करते हैं वो गीगाबाइट्स में यानी जीबी में, एमबी में बात करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी डेटा स्टोरेज की या मेमोरी की। क्लॉक जो है
ये क्लॉक ये डिसाइड करती है कि किसी भी प्रोसेसर का की स्पीड कितनी होगी ऑपरेशन की, कितनी जल्दी ये किसी भी ऑपरेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं कितनी जल्दी ये उस ऑपरेशन को फिनिश करेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक स्पीड। क्लॉक जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। आप लोग जब भी मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते होंगे, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो किसी भी वेबसाइट पर देखिएगा, आपको जो डिटेल्स में आप जब जाएंगे किसी भी मोबाइल के या लैपटॉप के, तो उसमें प्रोसेसर के आगे क्लॉक स्पीड लिखी हुई होती है, जो कि आजकल की डेट में गीगाहर्ट्ज में 3.2 3.4 इस तरह से 3.6 गीगाहर्ट्ज लिखी हुई होती है। तो वो इनकी क्लॉक स्पीड होती है। अब आप देखिए जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो 108 किलो हर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लिखी हुई है। आज की डेट में आप देखते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग गीगा हर्ट्ज में क्लॉक स्पीड है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर कितना स्लो होगा और आज की डेट में आप लोग जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं मोबाइल्स में लैपटॉप में वो कितना फास्ट है। आफ्टर दैट फिर 1972 74 इस तरह से ये प्रोसेसर भी आए, थोड़ा थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज हुए, क्लॉक स्पीड इंक्रीज हुई, ये एड्रेस और डेटा बिट्स इंक्रीज हुई, और ये इंक्रीज हुई इसीलिए जो मेमोरी साइज थी वो भी इंक्रीज हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों को जो स्टडी करना है 8085 एंड 8086। स्टूडेंट्स क्लास रिजाइन कर लीजिए, हम क्लास एंड कर रहे हैं, टाइम एंड हो गया है।